Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and doing well. Today I'm here to talk about the Google Forms. In this video I'll tell you that how we can collect the data by using the Google Forms and how we can gather the information in Excel sheet by using the Google Forms. Also for the researchers, for the surveyors to collect the information, it is quite easy now to convert your questionnaire and convert your information to the Google Forms, email that Google Forms to the respondents and to the population or the sample respondents. जो भी आपकी sample items होते हैं या sample सैम्पलिंग फ्रेम में जो भी पीपल है, जो भी आपकी सैम्पल डेटा है, वो कलेक्ट करने के लिए आप गूगल फॉर्म्स के जरिए जो है वो इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट कर लेते हैं. So by using the Google Forms you can collect the information and you can analyze it and convert that data automatically to the Excel sheet. So today in this video we will talk about it here. Before starting, I again request you guys, if you didn't subscribe my channel, please subscribe it and do share it with your family, friends and students who need guidance in these things. So in my videos you will get the information about the data analysis and the Google Forms and questionnaires and the topics about statistics. So let's start today's video. In the first step we will talk about the Google Forms, how we can formulate. If you didn't want to convert your questionnaire to the Google Form, you want to make design your questionnaire directly on the Google Form, so we will talk about it here. In my earlier video I talked about how you can convert your Word document or Word format पे जो आपका questionnaire होता है, how you can convert it to the Google Forms, ठीक है. And then that's quite easy process. In after converting the questionnaire to the Google Forms, you can collect the information by using it, or you can directly generate it in terms of the Google Form here. So let's start it here. I just opened my Chrome browser and then in it I went to the Google पे जाने के बाद जब आप इस पे करेंगे क्लिक, you can see this icon here on the right corner. If you will click it, all of the Google apps are downloaded here. So I need to go to the forms. So you can see here all of the Google apps are here. So I'll go to the forms. If I click it here, I'm directly going to the Google form. Here you can see that in this form all the blank form is there. Contact information, RSVP. Google has already designed some kind of the questionnaires or some kind of the forms. If you want to use any kind of it, so contact information आप इसको यहाँ पर use कर सकते हैं. Otherwise recent forms पे यहाँ पर आ जाएगा which you already you have used. So let's start it here. If I'm using the contact information, आप इसको use कर सकते हैं, or you can use the blank form. Let's say I'll give you the example by the blank form or by giving it the event registration. Let's say you want to conduct an event and you want people to get registered through this Google form. So what you can do, you can click it here and then after that this event information Google form will be shown here, right? After this event information, event registration is here. Event registration में आप क्या करेंगे, you can see here all of the event timings, event address and contact number वगैरह, all of you can give it here. What you have to do, you just need to click it here, event registration. आप इस पे इसका title change कर सकते हैं, आप इसका font वगैरह change कर सकते हैं. Font change करने के लिए this is the add title and description, its image, its add video, its add section and this is the questions you want to add it here. ये सारी informations आपके पास आ जाएंगी. यहाँ पर आप इसका theme customize कर सकते हैं. All of the information is there. The first of all we'll talk about it here. The static means all of the questions which name. So what does it mean by this? The respondent need to give his or her name. So in this you can select the title, you can give it
The checkbox, multiple questions, multiple choice questions, short answers, but name should be the in terms of the short answer. So we will select the short answer here, or we will select it required. If it doesn't required, so required पे जब आप इसको कर देंगे, it means कि this is compulsory, right? After that, in the next question, this is the email here. email पे भी आप इसको short answer कर देंगे, and text email लाइक आप इस पे जो है वो शॉर्ट आंसर में नॉमिनेट कर देंगे, दिस इज द टेक्स्ट, दिस इज द ईमेल, और इट्स द यूआरएल हियर. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इट्स द शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, एंड देन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेज विल यू अटेंड, किन डेज पे आप इसको अटेंड करना चाहते हैं. दिस इज जस्ट द क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन कलेक्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और चेक बॉक्सेस, राइट. सो इफ यू वांट टू गिव इट द ड्रॉप डाउन, आप इस पे ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं, आप इसको जो है वो चेक बॉक्सेस भी कर सकते हैं. बट वी हैव गिवन द 3 days इवेंट देयर, सो 3 days इवेंट के लिए हम इस पे जो है वो चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, एंड चेक बॉक्स के बाद हम यहाँ पर जो है वो डे 1, डे 2, डे 3 जो है वो इस तरह से ऑप्शंस इसमें देते जाएंगे. एंड आफ्टर दैट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस मीन्स here are again it's the multiple choice questions. आप इसको multiple choice भी रख सकते हैं, check box भी रख सकते हैं, it's up to you, and you can give it here. And after that I understand that I'll have to pay $1 upon arrival, and this is the yes. ठीक है, so all of these things are required here. We have given the information. If you don't want to use it, but let me explain it again. After filling it this, you can go to this one. आप इस पे क्लिक करेंगे गेट प्री फिल्ड लिंक. ठीक है, दिस इज द गूगल फॉर्म यू हैव ऑलरेडी डिजाइंड. यू कैन चेंज द इमेज हेयर. आप इस पे जो है वो सिलेक्ट करके इसका थीम चेंज कर सकते हैं, आप इस पे जो है वो टाइटल चेंज कर सकते हैं, इमेजेस दे सकते हैं, क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हैं. इंपोर्ट मीन्स आप किसी और क्वेश्चन से या गूगल फॉर्म से क्वेश्चंस जो है वो यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उसमें से जो है वो कलेक्ट कर लेंगे. एंड दिस इज द एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, दिस इज द प्रीव्यू फॉर्म हियर. कस्टमाइज थीम, एड ऑन्स, undo, डू, ये रीडू करने के लिए है. एंड देन दिस थिंग इज हियर, मेक अ कॉपी, गेट प्री लिंक. ठीक है, गेट प्री फिल्ड लिंक का मतलब ये है कि आप इसको फिल करने से पहले जो इसका लिंक है वो आप यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यू विल गेट द फॉर्म हियर. और फॉर्म के जब आप लास्ट में जाएंगे, हियर यू कैन सी गेट लिंक. ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा. शेयर द लिंक इंक्लूड प्री फिल्ड रिस्पॉन्सेज, कॉपी लिंक. और लिंक को कॉपी करने के बाद आप किसी को भी जो है वो इसको ईमेल कर सकते हैं. लाइक आप यहाँ पर जाके इसको जो है वो कहीं पर टाइप कर सकते हैं, या लाइक इफ आई एम गिविंग इट हियर, आई एम गोइंग टू द गूगल फॉर्म. गूगल पे जाएंगे, इसको लिंक को यहाँ पर आप जो है वो टाइप कर सकते हैं. दिस वन इज द लिंक हियर. आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा इसका. सो इस तरह से करके आप इसका जो है वो QR कोड भी जो है वो इसमें से ले सकते हैं. सो बिफोर गोइंग टू दिस, आपने लिंक कॉपी कर लिया. आफ्टर दिस व्हेन यू विल गो टू द रिस्पॉन्सेज, आप उस लिंक को ईमेल कर सकते हैं. नाउ देयर इज जीरो रिस्पॉन्स. जीरो रिस्पॉन्स मीन्स कि अभी तक किसी ने इसको फिल नहीं किया. बट लेट्स गो बैक टू इट. इफ आई वॉन्ट टू मेल इट, मैं यहाँ पर किसी को जो है वो ये मेल कर देती हूँ अपना. ठीक है, आई वॉन्ट टू मेल इट, मैं इसको मेल करती हूँ. दिस वन इज हियर, आई एम गोइंग टू मेल इट टू माई सेल्फ. मैं इसमें अगेन इसको मेल कर देती हूँ. दिस इज एंड दिस इज द लिंक हियर. आफ्टर दैट आई सेंड इट, एंड नाउ आई गॉट इट. इफ आई क्लिक इट, you can see here this Google form will get open, and then I'll fill this form. ठीक है, now I'm going to fill it. Then you can see what it will happen. Let's say I'm filling it. This is my name, it's my email address, which is here, organization, let's say कुछ भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं.
and then after that you can go to the what days. आप इसमें check कर सकते हैं day 1, day 2, day 3. if I want to attempt the 3 days, so that means I'm checking all of the 3 days. Dietary restrictions, I am vegetarian, let's say, so I'll give it this option, untitled title, and this, and I understand that I have to yes, and then I'll click the submit. Right here you can see that my response is being submitted. I can edit my response. Here in event registration form you can see this one is here, one response is given and all of the data is collected here. You can see this data is given. This is the form which I have designed for myself. When any of the respondent will fill this form, you will get, this is the questions and you will get responses here. And if you will click the summary and questions और individual पे जब आप correct करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा. summary पे जब आप जाएंगे, let's say I am again going to fill it, मैं इसको दोबारा से जो है वो fill कर लूँ तो हमारे पास जो है वो 2-3 रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे. सो आई वॉन्ट टू शो इट देयर. ठीक है, मैं लेट्स से इसमें अपना कोई और ईमेल एड्रेस एंटर कर देती हूँ. लेट्स से माय नेम इज इमामा एंड देन माय ईमेल एड्रेस आई एम गोइंग टू एड इट एंड देन आफ्टर दैट I'm going to add whatever ABC आप इस पे ऐड कर देंगे. day 1, day 2 पे मैं अटेंड करना चाहती हूँ. The next one is the kosher and I have to check this one and I'll submit it again, and this event is again given. Here you will see there are the 2 responses. In summary you will see the name, emails, organization, all of these things are here. ठीक है, and graphical presentations of the questions like what days you will attempt. Here you can also copy the charts of the questions. This is very easy term in the Google form. In Google Forms you can very easily get its analysis of the data. You don't need to go anywhere. आपके पास responses में यहाँ पर here you can see that सारे questions का जो है वो automatically Google जो है वो analysis करके इसमें दे सकता है, और आप इसको वेरी इजीली कॉपी करके अपने डेटा एनालिसिस चार्ट पे या अपनी शीट पे जहां पर आप एनालिसिस रिपोर्ट बना रहे हैं वहां पर आप इसको डेटा को इजीली कॉपी कर सकते हैं. एंड आफ्टर दिस इज द सेटिंग्स. सेटिंग्स में आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस की. इन दिस सेटिंग्स यू कैन मेक दिस अ क्विज. मेक दिस क्विज पे आप पॉइंट वैल्यूज दे सकते हैं. रिस्पॉन्सेज में मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड. कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे अगर आपने कलेक्ट करना है तो आप इसको ओपन कर देंगे. ठीक है, एंड देन आ जाएगा सेंड रिस्पॉन्सेज और कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स. आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं व्हेन रिक्वेस्टेड, या ऑलवेज भी कर सकते हैं. अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, आप इसको एडिटिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं. अदरवाइज आप इसमें जो है वो उसको बाय डिफॉल्ट फॉर्म डिफॉल्ट्स कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट, आप इसको भी जो है वो ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं. क्वेश्चन डिफॉल्ट सेटिंग अप्लाई टू ऑल क्वेश्चंस. अगर आप सारी क्वेश्चंस को एक ही सेटिंग पे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यू डोंट नीड टू गो इट. So this was how we can design the Google form and how we can collect the responses here. After that, if you want to collect that information into the Excel sheet, I'll tell you here how you can collect it into the Excel sheet. You just need to collect it here. आप यहाँ पर क्लिक करेंगे. This one is the tab of the questions. जो आपके questions हैं, जो आपका Google form है, जो आपने डिजाइन किया है. In the second option you will get responses. Responses, individual responses आपके पास यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहे हैं, जिसमें आप यहाँ इसका analysis भी देख सकते हैं. And after that, if you want to collect all of this information in an Excel sheet, what do you need to do? You just click this icon on the right corner. This is the Excel sheet. You will collect it here. Create a new spreadsheet or select existing spreadsheet. मैं इसको new spreadsheet जो है वो select करना चाहती हूँ तो मैं उस पर कर लूंगी. अदरवाइज अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो हम इस पे कलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसका वो पाथ दे देंगे तो हमारे पास हो जाएगा. आई एम जस्ट गिविंग इट टू द क्रिएट अ न्यू शीट, और मैं इस पे जो है वो क्रिएट कर दूंगी इसको. सो व्हाट आई विल डू, यू कैन सी हियर, मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल की शीट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी जिसमें सारे रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, टाइम एंड स्टैम्प आ जाएगी.
लाइक किस टाइम पे जो है ये इंफॉर्मेशन फिल आउट हुई है, ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ द ईमेल एड्रेसेस आई एम गिविंग, ठीक है, जिस डेटा से इंफॉर्मेशन मिली है ये ईमेल एड्रेसेस यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, दिस इज द नेम, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू कैन सी ऑल ऑफ द डेटा इज हेयर। आपके पास यहाँ पर जो है वो सारा का सारा डेटा जो भी रिस्पोंडेंट्स को होगा वो एक्सेल शीट में कलेक्ट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन सेव दैट शीट सेम एज द एक्सेल फॉर्म्स और एक्सेल शीट्स जो आप करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, मेक अ कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, वेब पेज है और ऑल दैट ऑप्शंस आर हियर। मूव कर सकते हैं आप इसको डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको शॉर्टकट के तौर पे ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको एक कॉपी के तौर पे, लेट्स से मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लूंगी। आई कॉपी इट, कॉपी ऑफ इवेंट रजिस्ट्रेशन ड्राइव, आप इसको फोल्डर यहाँ पर दे देंगे, शेयर इट विद द सेम पीपल, या कॉपी कमेंट्स आप कर सकते हैं, मेक अ कॉपी, और इसको हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट today about the Google Forms and collecting the information into the Excel sheet. After that you can go to the data analysis. आप इसमें data menu में जो है वो उसमें जाके डेटा एनालिसिस में इसकी शीट्स में सारा का सारा इसके जो भी प्रोसीजर्स हैं वो आप कर सकते हैं। लाइक आप इसमें डेटा वैलिडेशन चेक कर सकते हैं, डेटा क्लीन अप कर सकते हैं, डेटा स्लाइसर और ऑल दोज थिंग्स जो भी आप इन पे इंफॉर्मेशन जो है वो करना चाहते हैं। आप इस पे फॉर्मूलाज लगाना चाहते हैं, आप इसके ग्राफ्स बनाना चाहते हैं, वट एवर द थिंग यू वांट टू डू विद दिस डेटा यू कैन डू आफ्टर दिस, ठीक है। So it was about the Google Forms. Let me again tell you that if you want to make a new form, आप इस पे Google Forms पे जाएं, Forms Home, and this one is the blank. I'll tell you that was the new form. Now I'm going to the untitled form. ये untitled form है, मैं इसको let's say gathering information कर देती हूँ या collection of collecting information form, and then this is the email. I want to give it form description. form description पे आप इसकी जो है वो कोई भी डाटा कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर सकते हैं। ईमेल, वैलिड ईमेल हम यहाँ पर अपना दे सकते हैं। अनटाइटल्ड क्वेश्चंस, अब यहाँ पर जो है वो चेंज सेटिंग्स में आप दिस फॉर्म, here you can see what does this form is collecting emails. That means जब हम इसको करेंगे, मैंने क्योंकि उस पे सेटिंग्स पे चेंज कर दिया था कि मेरे पास जो है वो इसमें जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो ईमेल्स को कलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्ट ईमेल्स, सो क्वेश्चन डिफॉल्ट्स, फॉर्म डिफॉल्ट्स पे हमारे पास ये आ जाएगा न्यू फॉर्म्स हैं एंड कलेक्ट ईमेल्स बाय डिफॉल्ट मैंने उसको कर दिया था। तो ये बाय डिफॉल्ट आप जिस भी ईमेल एड्रेस से रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो इसको फिल अप करेंगे तो ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो है वो इसको कलेक्ट कर लेगा। नाउ आफ्टर दिस अनटाइटल्ड क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर जो है वो इसका क्वेश्चन कर दूंगी। लेट्स से आई वांट टू कलेक्ट इट द नेम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, एंड देन इट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द शॉर्ट आंसर बिकॉज आई डोंट नीड टू गिव इट टू द पैराग्राफ, इट विल बी अ शॉर्ट आंसर, सो आई गिव इट हियर, दिस वन इज रिक्वायर्ड। तो मैं इसको जो है वो चेक कर दूंगी, दिस इज कंपल्सरी। आफ्टर दैट आई विल ऐड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, लेट्स से, और if I'm collecting it from the students, so this is the registration number. Again, this registration number is the short answer and this is also required. After that I can add next question. आप यहाँ पर इसमें next questions जो है वो import भी कर सकते हैं, add title and description भी कर सकते हैं, add image, add video, और आप यहाँ पर इसमें एक section भी add कर सकते हैं। Let's say now I want to make it first section, तो मैं ये इस पे यहाँ पर कर दूंगी, ये मेरे पास नया सेक्शन आ जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन, एंड दिस वन इज द सेक्शन 2 of 2, ठीक है। सो सेक्शन 1 में हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंड देन लेट्स से आई वांट टू गेट द कॉन्टैक्ट नंबर, एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज अगेन रिक्वायर्ड हियर, सो इट्स द क्वेश्चन फॉर्म। इन सेक्शन 2 यू कैन ऐड योर क्वेश्चंस। आप यहाँ पर एज इट इज जो है वो अनटाइटल्ड, लेट्स से आई वांट टू से इट द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के बाद आप जो है वो इसको कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस, या आप इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम
which institute you are attending this seminar. ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया एंड देन आफ्टर इट दिस इज द सेक्शन 2. सॉरी, इसमें क्वेश्चंस ऐड करने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन है. सेक्शन 2 का जो है वो टाइटल हम यहाँ पे देंगे दिस इज द पार्ट 2 एंड इन पार्ट 2 आई ऐड द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस ऐड करने के लिए हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आप पार्ट 2 की दे सकते हैं. यहाँ पर आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, उसको मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं, उसको चेक बॉक्स रख सकते हैं. लाइक अर्लियर इन द इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आई टोल्ड यू इन द ड्रॉप डाउन आप उसमें कर सकते हैं. आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर. इफ़ यू वांट टू गिव इट द इमेज, आप यहाँ पर जो है वो पिक्चर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर पिक्चर कर देंगे और पिक्चर के लिए आप यहाँ जो है वो फाइल अपलोड की इंफॉर्मेशन दे देंगे. ठीक है, लेट रिस्पोंडेंट अपलोड फाइल्स टू ड्राइव. ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर एंड देन कंटिन्यू कर देंगे तो ये हमारे पास अपलोड फाइल की ऑप्शन आ जाएगी. अब अपलोड फाइल में आप यहाँ पर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स और मिनिमम नंबर ऑफ फाइल्स और फाइल साइज जो है वो मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, लाइक इफ आई एम गिविंग इट द 10 MB अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स. स्पेसिफिक फाइल टाइप्स पे आप ऐड कर देंगे तो आप यहाँ पर इसको गिवन दे सकते हैं कि डॉक्यूमेंट हो, स्प्रेडशीट हो, जस्ट PDF हो या इमेज हो और जस्ट डॉक्यूमेंट हो. इस तरह से करके आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और फाइल अपलोड पे. ठीक है, एंड देन व्यू फोल्डर पे आप जाके उसकी जो है वो चेंजिंग देख सकते हैं. ठीक है, दिस वन इज अगेन रिक्वायर्ड, सो हम इसको चेक कर देंगे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अबाउट द फिलिंग ऑफ द फॉर्म एंड देन आफ्टर दैट कलेक्टिंग द रिस्पॉन्सेज. आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे जो भी आप इसको क्लिक करेंगे. ईमेल अगेन टेलिंग यू आफ्टर मेकिंग योर क्वेश्चनएयर, जो आपने फॉर्म डिजाइन कर दिया आप यहाँ पर जाएंगे, इस आइकन को क्लिक करेंगे, गेट प्री फिल्ड लिंक, आप इसको प्री फिल्ड लिंक पे जाएंगे और इसके बॉटम पे जाके लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे गेट लिंक. यहाँ से गेट लिंक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास शेयर दिस लिंक इंक्लूड प्री फिल्ड रिस्पॉन्सेज. दिस इज द कॉपी लिंक. कॉपी आपके पास हो चुका है लिंक, आप इसको जाके कहीं भी जो है वो ऐड कर देंगे. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आप इसका QR कोड भी जो है वो ले सकते हैं. लाइक इफ आई एम गोइंग इट हियर एंड आई एम टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन QR कोड जनरेटर पे आप जाएं. ठीक है, इन दिस QR कोड जनरेटर आप इसका QR कोड जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं इस फॉर्म का एंड देन यू कैन सेंड इट टू एनी वन ऑफ द रिस्पोंडेंट और बाय जस्ट क्लिकिंग और बाय स्कैनिंग द QR कोड दे कैन फिल दिस फॉर्म. वो डायरेक्टली उनके पास ओपन हो जाएगा सेम एज जैसे लिंक के थ्रू ओपन होता है एंड देन यू कैन गिव इट टू दैट. हियर यू कैन सी यहाँ पर आप इसका QR लिंक जनरेट कर देंगे. ये QR लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से. दिस थिंग इज हियर, आप इसको डाउनलोड करें एंड देन अगेन आपके पास इसका नेक्स्ट जो है वो QR कोड आ जाएगा. राइट, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हियर. आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्सेज, आप रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने के बाद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में इस फॉर्म पे जब आप जाएंगे तो एक्सेल शीट पे आपने कैसे जो है वो इसको कलेक्ट करना है. Here you can see in this form responses and after that going to the responses. In responses you will see the Excel sheet will be there, all of the responses and its analysis will be shown here, and in Excel sheet you can get all of the collected information in the spreadsheet form. So this was all about today's video. If you have any kind of the questions, please do comment on my video and do share it in the comments. I'll definitely respond it. And if you like my video, please do share it with your friends, family and students so they can get benefit from it. Take care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.